Hello students, good evening. This is a very rough video. I am trying to make it for you and try to understand what I'm speaking here. You can listen. Questions and answers I have taken from the software, but important thing is that you have to understand. That's why I'm making this video. And very common question will may come, that is the basic rules of English, uh, right? Grammar. So what is that's a subject verb agreement. So that we have to understand that the subject should be matched with the verb. They have given example she. When she is subject, then if we talk about present tense, so it becomes writes. Means if we put s in the sometime noun or pronoun, so then in verb for present tense, and so in verb it will be without s. So in other words we can say that sometime s in the subject means s with the noun, है ना, or sometime s in the verb. That is very important, and that makes that that is called agreement between subject and verb. They is plural, that's why are right. Here I'm telling you that's a they right. So that's a they right. Here a right is not s. Why? Because they subject is plural. So you have to talk about subject verb agreement. This is a basic rule of grammar. Then tense, right? Correct use of past, present, and future tense, right? So what are the past, present, and future? You can give example: simple past, simple present, simple future, right? So simple past is that's a Ram goes, they go, है ना, this way. And then simple past, Ram went, they went, right? Simple future, they will go, Ram will go. This is called simple future. Then continuous tense. So present continuous is I'm going. Then past continuous I was going, and future continuous I will be going, right? Then come to perfect tense. So I have gone. Present perfect is I have gone or she has gone. Past perfect is she had gone, they had gone, I had gone. And future perfect is I will have gone there, they will have gone there, she will have, she is singular but have is there, will have gone there, something, right? And then present perfect continuous, I have been waiting for you since 7 o'clock, or I had been waiting for you since 7 o'clock, or I will have be been waiting for you when you come on 27, something like this, right? Then parts of speech I have already discussed in the class. Then uh, sentence structure. Common sentence structure is subject, verb, and object. So you have to talk about sentence structure. Then punctuations. Punctuations is where to put comma, where to put dot, question marks, etc. Then spelling, accurate spelling of words. And then syntax is arrangement of words and phrases to create well formed structure. For example, subject, first subject will be placed, then the verb, then object, right? Now communication and globalization, very important and common question, right? Communication is the life blood of globalization. Means if imagine in the time, same you can give the example in the time of corona, right? When lockdown, world was stopped, right? There was lockdown, right? So that lock, world is locked actually, and then there was no movement. So that is means very less communication. So if communication is less, so definitely we can never expect for any progress or
moving to global world. So that is called life blood, because communication is just like a blood which runs in our body, and then there is no movement of blood, then we will die. Similarly, that is lifeblood. Now, facilitates trade. Without communication, no trade is possible. So that is very important. Enables business to negotiate, contract, and exchange information across the border. Right. So what is this? That's a America, London, everywhere. First, business negotiation means we have to talk, we have to have meeting, we have to have telephonic conversation, letter writing, blah blah. So many things, right? That is business negotiation, contract, right? Exchange information. That comes in that is trade. So they communication expands. If we are good at other languages, definitely it will expand our business as well. Then promotes cultural exchange, right? uh, Sindhi, even in India, if you see, that's a Gujarati, Bengali nritya, then uh, that's a mm, Kashmiri dance, right? And then every state has its own speciality, and that cultural exchange is possible through language, body language, right? So allow people from different cultures to share ideas, values, etc. Then disseminates information, explores the rapid speed of news, knowledge, technology. Now, life is with the technology, life is very fast now. Then, next is that's a fosters collaboration, allows international organizations and individuals to work together because of business. Many uh, employees are doing online job, right? So that is only because of communication, right? Then enhance connectivity, connects people and businesses worldwide through various communication technology, right? Now next question is that answer is not given here. Newspaper versus social media. Advantages of newspaper: credibility. Newspaper often gives established editorial strengths and fact checking process, right? Depth of coverage. Newspapers provide in depth analysis and context for न्यूज़ स्टोरीज. तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत डेप्थ में न्यूज़ पेपर में पढ़ सकते हो. स्ट्रक्चर्ड information. Newspaper are organized into sections, making it easy to find specific information. फ्रंट पेज में पॉलिटिकल न्यूज़ आती है ना. थर्ड पेज में कल्चर लोकल न्यूज़ आती है. ऐसा स्पोर्ट्स का एक अलग पेपर सेक्शन होता है उसमें. तो दिस वे यू कैन से दैट न्यूज़ पेपर्स आर ऑर्गेनाइज इन टू सेक्शंस, राइट? सो दैट्स टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, टाइम न्यूज़, टाइम स्पोर्ट्स, टाइम. This way sections are divided, right? Then less bias. While bias exists, traditional newspapers tend to strive for more balanced reporting than social media. So social media is somewhat that is unbiased, not 100% unbiased, but unbiased. But social media information is bias, right? We want to see what we want, that algorithm show us the similar videos, similar photos. And then similarly, that's a information. Suppose if we what we want to see, so that will be shown to us, right, in social media. But in newspaper they are fixed. Then physical format. The tangible nature of newspaper can enhance focus and retention, because we that's a hard copy, हम उसको देखते हैं. और सॉफ्ट कॉपी, हार्ड सॉफ्ट कॉपी भी ठीक है, बट न्यूज़ इज़ न्यूज़. बट देन सोशल मीडिया इज़ लेस रिलायबल, राइट? देन लिसनिंग टाइप्स. एक्टिव लिसनिंग, फोकस एंगेजमेंट. पैसिव लिसनिंग, that's a background sound. Sometime sound comes from outside, that is a passive listening, right? So critical listening, evaluating information when someone is saying something and you are criticizing. Then remedies: practice active listening, minimize distraction,
टेक नोट्स एंड आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आप एक्टिव लिसनर हो, और फिर आप क्या करोगे कि एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से सुनो। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, तो आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, किसी ने कुछ कह दिया या हम कहीं जाना चाहते हैं, माइंड में कुछ और चल रहा है, दीज आर डिस्ट्रैक्शन, है ना, वो नहीं करना है। दूसरा, टेक नोट्स, और आप नोट्स बनाते रहो। एंड आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, तो अगर आपको जहाँ भी डाउट हो तो उसको पूछोगे अगर, तो वो दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग। रीडिंग का हमने डिस्कस किया था, इसमें स्किमिंग, गेटिंग द जिस्ट, तो स्किम करके मतलब जैसे दही निकालते हैं, छाछ निकालते हैं सॉरी, तो वो स्किमिंग हो गया। मतलब आप बहुत बार पढ़ के और फिर फाइनली एक कंक्लूजन पे आते हो। फिर स्कैनिंग, जैसा कि हम स्कैनिंग अब नहीं होता इतना, लेकिन पूरा एक बार पूरा पढ़ना, फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एंड देन तो पूरा पढ़ने के बाद आपको खास खास चीज़ें समझ में आएंगी, दैन इंटेंसिव रीडिंग, और फिर पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल इंफॉर्मेशन। फिर रेमेडीज़ क्या है? रीड रेगुलरली, वेरी रीडिंग मटेरियल, बहुत अच्छा है पढ़ना, इज़ वेरी गुड, रीडिंग इज़ वेरी गुड। इम्प्रूव वोकैबलरी, प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट, है ना, तो ये अभी नहीं दिया, अच्छा दिया है। तो इसमें शॉर्ट नोट में क्या है? स्टोरी राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग नरेटिव विद कैरेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग, थीम्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी राइटिंग में प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, थीम होती है, मैं कल और समझा दूंगी। की एलिमेंट्स क्या होते हैं? इंगेजिंग बिगनिंग, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स एंड कंपेलिंग प्लॉट एंड सेटिस्फाइंग कंक्लूजन। ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप इंगेज रखो लोगों को, है ना, बिगनिंग समझ में आना चाहिए, अच्छे से कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सारे राइटिंग के पार्ट है, स्टोरी राइटिंग के। रिपोर्ट राइटिंग में क्या करते हैं? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो बड़ी कंसाइज और डायरेक्ट होती है, ज़्यादा बातें नहीं होती उसमें, उसको हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। की एलिमेंट्स ऑब्जेक्टिव टोन, आप अपना व्यू मत दो उसमें, आप क्या हुआ है वो बताओ। फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और प्रॉपरली उस रिपोर्ट का ऑर्गेनाइज करना, उसको बनाना, और एक्यूरेट डेटा और क्लियर कंक्लूजन, राइट। नाउ डेली एंट्री, दिस इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ डेली इवेंट्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स, है ना, हमारे मन में क्या चल रहा है, उसको डेली एंट्री कहते हैं। इट इज़ पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड कैन बी यूज टू ट्रैक प्रोग्रेस, कि अभी मुझे इतना आता है, मुझे यहाँ कन्फ्यूजन है, बाद में पता चला कि आपको बहुत सारी चीज़ें आने लगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। अब आते हैं हम ग्रुप डिस्कशन, डूज एंड डोंट्स, करना क्या चाहिए। लिसन एक्टिवली, जब भी ग्रुप में बैठे हैं तो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो। स्पीक क्लियरली एंड कंसाइजली, वन सेज समवन सेज, ऐसा नहीं, आप बहुत क्लियर और डायरेक्ट बात करो। रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, दूसरों को की बातें काटने के लिए मत काटो, है ना। फिर प्रोवाइड रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, जितने एग्जाम्पल्स आप बताओगे जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में, उतनी ही आप को लोग सुनेंगे, तो दैट्स अ बेस्ट पार्ट। एंड देन स्टे ऑन टॉपिक, डिस्ट्रैक्ट मत हो। पता चला हम टॉपिक से हट के कुछ और ही डिस्कस करने लगे, है ना। अच्छा, डोंट्स क्या है? इंटरप्ट अदर्स, आपको दूसरों को इंटरप्ट नहीं करना है ना। फिर डोमिनेट द कन्वर्जेशन, कि मेरी बात सुने, दूसरों की बातों को काटिए मत। फिर यूज़ ऑफेंसिव लैंग्वेज, कभी नहीं ऐसी लैंग्वेज, कोई गंदे वर्ड्स नहीं यूज़ करना है। गो ऑफ टॉपिक, पता चला आप टॉपिक से दूसरी बात पे चले गए। एंड फेल टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट्स विद एविडेंस, और अगर आप नहीं कर पाए, अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाए, एविडेंस नहीं है, तो फेल हो। ये इसके डोंट्स है ना। तो इसमें ये है। फिर उसके बाद कन्वर्जेशन है, जैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ऐसे लिखना है आपको कन्वर्जेशन। हे, आर यू रेडी फॉर द इंग्लिश एग्ज़ाम? नॉट रियली, आई एम स्ट्रगलिंग विद द ग्रामर सेक्शन, वी वुड स्टडी टुगेदर, आई मीन गुड एट ग्रामर, लेट्स मेक अ शेड्यूल। तो वो बोलता है कि ठीक है, दैट इज़ ग्रेट आइडिया, मे बी वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस राइटिंग ऐसे। तो कहता है ओके श्योर, लेट्स मीट एट लाइब्रेरी टुमारो। ये कन्वर्जेशन, वेरी गुड कन्वर्जेशन, राइट। फिर अब दूसरा है लिसनिंग, लर्निंग इंग्लिश में क्या है? इमर्शन, सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश मूवीज़, म्यूज़िक, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश का पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़ चैनल देखो, ये है ना। फिर प्रैक्टिस स्पीकिंग, बोलने की कोशिश, इंगेज इन कन्वर्जेशन विद
नेटिव स्पीकर्स और लैंग्वेज पार्टनर्स, जो भी आपसे बात कर सकता है उसे कोशिश करो बोलने की। फिर रीड रेगुलरली, अच्छा कुछ पढ़ो वोकैब इम्प्रूव करने के लिए। फिर राइट फ्रीक्वेंटली, और कोशिश करो कि जर्नल में लिखो, ऐसे लिखो, कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेशन हो। फिर यूज़ लैंग्वेज लर्निंग ऐप, अभी तो बहुत सारे ऐप आ गए, तो ऐप को यूज़ कर सकते हैं आप। यूटिलाइज ऐप लाइक ड्यूलिंगो, है ना, तो ड्यूलिंगो में जाके देख लेना, बेबल करके है फॉर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, राइट। फिर टेक ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज, एनरोल इन कोर्सेज टू इम्प्रूव स्पेसिफिक स्किल्स, है ना। फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या है, तो फोकस कम्युनिकेटिव इंग्लिश फोकस्ड ऑन यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली इन रियल लाइफ, राइट। कैसे, फ्लुएंसी, बीइंग एबल टू स्पीक अंडरस्टैंड इंग्लिश स्मूथली, तो फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, गलत नहीं बोला, यूजिंग करेक्ट ग्रामर, राइट, अप्रोप्रिएटनेस, अडेप्टिंग लैंग्वेज टू कनेक्ट ऑडियंस, है ना। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ जस्ट memorizing grammar rules, you would practice ordering food at restaurant। ऐसे ये एग्जाम्पल्स आपको देना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने क्लास में बताया, इसको नहीं बताऊंगी मैं भी, आप एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो शॉर्ट नोट है कि इसमें नीड एसेंशियल फॉर सोशल इंटरेक्शन, बिजनेस एंड ऑल। प्रॉब्लम्स ये है कि लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू अनक्लियर मैसेज, नॉइस, ठीक है। अब ये न्यूज़पेपर का मैं अभी कल बताऊंगी आपको, अभी कोई गैस, अच्छा चलिए थोड़ा सा ही है, मैं बता देती हूँ। न्यूज़पेपर का क्या है, ये स्टेटमेंट आएगा कि न्यूज़पेपर इज़ ग्रेटर ट्रेजर टू द पीपल देन अनकाउंटेड मिलियंस ऑफ गोल्ड। आपके पास कितना भी सोना हो पर न्यूज़पेपर ना हो तो लाइफ बहुत ही अलग है, खाली है। तो न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कितनी इजीली इन्फॉर्मेशन है, ये कितनी बड़ी बात है। दैट एम्पावर सिटीजन, फिर दे होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म, तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर दे एजुकेट द पब्लिक ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज, है ना। फिर दे सर्व एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड दे फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। वो बहुत अच्छी बात है कि आपको एक न्यूज़पेपर में लगता है कि आपके कम्युनिटी के लोग हैं, आपका इस बिलोंगिंगनेस कह सकते हैं, वो रहता है ना। फॉस्टर सेंस ऑफ कम्युनिटी। फिर गोल्ड इज़ फाइनाइट, इंफॉर्मेशन इज़ इनफाइनाइट, बहुत है गोल्ड तो फिर भी थोड़ा सा होता है ना। तो ये पढ़ा समझा देना। उसके बाद मीनिंगफुल ये लिखना है ना, तो इसमें क्या है कि आपको इमेजिन करके लिखना है। पीयर डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, रोल पे, पीयर डिस्कशन, इनफॉर्मल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ये स्ट्रक्चर्ड है ना, इस तरह से है। रोल प्ले, एक्टिंग आउट सिनेरियो टू प्रैक्टिस कम्युनिटी स्किल्स। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।